Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we are going to talk about polymorphism. Polymorphism again is a very important topic and it is one of the main four pillars of the C++. हमने जब C++ की बात करी थी तो हमने four main pillars के बारे में बात करी थी. The first was inheritance. Secondly, polymorphism. Thirdly, data abstraction. Fourthly, encapsulation. We have already talked about the inheritance and today we are going to start with the polymorphism. Now, polymorphism का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये जो टर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा सा अपन ब्रेक डाउन करके देखते हैं. पॉली मीन्स मैनी. पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा. मैनी. एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. Morphism means forms. That means polymorphism means having many forms. So if we have to define the polymorphism, so we can define it as the ability. Just write the definition over here. So the polymorphism is defined as the ability of a message to be displayed in more than one form. ठीक है. अब अगर इसका एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करके देखें अपन, तो रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन. नाउ अ मैन कैन exhibit different characteristics, right? For example, there is a man, he could be a father, he could be a husband, for example, he could be an employee also. Okay. So basically what's happening in this example, same person is exhibiting different behavior in different situations. So this is known as polymorphism. Okay, whenever you have to explain the definition of polymorphism, just write the actual definition of the polymorphism and give a real life example. Okay, like this I have given you, you can do it also. Polymorphism is a very important topic and you can expect at least 5 to 6 marks from this topic also. ठीक है. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म को हम थोड़ा सा बाइफर्केट करके देखेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है. द सेकंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग and the second one is operator overloading. Both of these are very important. Overloading. Now when we talk about runtime polymorphism, so runtime polymorphism is achieved by function overriding. Now this topic, function overriding, is 90% similar to the one that we have already studied in the inheritance. तो अगर आपने inheritance पढ़ लिया है and after that you are studying polymorphism, it will be an advantage to you. And runtime के अंदर भी हम एक सब पार्ट की बात करते हैं, that is about virtual functions. ठीक है. सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को हम टू पार्ट्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं. टुडे वी विल बी डूइंग the compile time including function overloading and operator overloading, and in the next class we will be doing about runtime polymorphism. ठीक है. So now सबसे पहले हम बात करते हैं that what do we actually mean by compile time. Compile time का मतलब क्या होता है? When the program is compiled, the decision is already taken by the compiler that which function is to be run. Let me write it. When the program is compiled, decision is already taken by the compiler that which function is to be run. ठीक है. जब हम अपने फंक्शन को, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन को कॉल करने वाला है. ठीक है. कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शन को कॉल करने वाला होता है, ये डिसाइड हो जाता है अपने कंपाइल टाइम पर ही. नाउ टू द कॉन्ट्ररी, व्हाट हैपेंस इन द runtime. In runtime, the function that is to be invoked, that is to be executed, is known at the time of runtime. Runtime को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. कंपाइल टाइम मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को कंपाइल करते हैं तो ऑलरेडी
कंपाइलर डिसीजन ले चुका होता है कि मुझे कौन से फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाना होता है। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी अपने रिटर्न टाइप्स होते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर टू बी चेक, सारे के सारे चेक हो जाते हैं एंड कंफर्म हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करवाने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। लेट्स पुट द हेडिंग ओवर हियर, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शंस क्या होते हैं हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ रखा है। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन फंक्शन ओवरलोडिंग, it allows allows multiple functions with the same name but different parameters। हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हो सकते हैं विद द सेम नेम, बट उनके जो पैरामीटर्स हैं आइदर दे शुड बी इन different in the number of parameters or they should be different in the type of parameter to coexist in the same scope. Now, how will the compiler determine that which function should be called and when? Now, the compiler determines which function to call based upon the number of parameters। ठीक है, हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं जो पास हो रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम देन वी विल बी गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो काफी बेटर वे में समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लास है, हमने क्या कर रखा है, एक हमने क्लास बना रखी है क्लास ए के नाम से। अब इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए, हमने क्लास ए बनाई एंड इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए। फर्स्ट इज void print एंड इसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू को एज आर्ग्यूमेंट पास करवाया। सेकेंड फंक्शन हमने बनाया void print, सेम नेम के साथ बनाया है एंड यहाँ पर हमने एक डबल वैल्यू को पास करवाया। डबल को भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, या फिर किसी और डेटा टाइप जो भी हम पास करना चाहें, वी कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया ना, दोनों फंक्शंस का नाम यहाँ पर सेम है, void print एंड void print दोनों का नाम सेम है। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैसे होगा कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाया तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, क्योंकि उनके पास तो दो फंक्शंस है। देन इट विल चेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पर भी एक पैरामीटर ही है हमारे पास, यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर है, लेकिन अब क्या होगा, वो चेक करेगा दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैरामीटर दैट इज बीइंग पास्ड। सबसे पहले में हमारे पास इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, सेकेंड में हमारे पास एक डबल वैल्यू पास हो रही है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट इज पास्ड इन द ऑब्जेक्ट एज एन पैरामीटर और एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमको फर्स्ट फंक्शन को कॉल करवाना है या फिर सेकेंड फंक्शन को कॉल करवाना है। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम इन द कंपाइलर यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h अपन इंक्लूड नहीं करना है। देन लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए बना लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम बनाते हैं फंक्शंस void print एंड इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे int वैल्यू। ठीक है, इसको अपन यहीं पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं cout इज एन इंटीजर। ओके, एंड यहाँ पर अपन पास करने वाले हैं वैल्यू एंड देन एंडल। ठीक है, नाउ सिमिलरली यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे void print एंड इसके अंदर एक डबल वैल्यू को पास कर देते हैं, डबल वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर करवा देंगे cout डबल वैल्यू एंड यहाँ पर वैल्यू की जो भी आएगी दैट इज एंटर। नाउ इंट मेन सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ पैरामीटर जो भी वैल्यूज हमें पास करने वाले हैं, इंट मेन। सबसे पहले यहाँ पर अपनी क्लास का नेम लिखते हैं एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, a1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नाउ a1 डॉट प्रिंट करेंगे सबसे पहले, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग 24।
ये एक इंटीजर है, तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। सेकेंडली a1 डॉट प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पर एक डबल वैल्यू को पास कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8.9 समथिंग, and lastly return 0 and execute the program. Okay, so the output is integer is 24 and the double value is 8.9. अब यहाँ पर अगर हम दोनों की वैल्यूज को रिवर्स करते हैं तो सबसे पहले हम 7.8 लिख लेते हैं एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि सबसे पहले हमारा कौन सा वाला फंक्शन कॉल होता है, इंटीजर फंक्शन कॉल होगा या फिर डबल फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, डबल वैल्यू कॉल हुई है एंड देन हमारे पास जो इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं इन विच वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम n number of times by using different types and different numbers of the parameters, ठीक है। Now the next topic that we are going to talk about today is operator overloading. Operator overloading. नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा इसको समझने में भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, बट डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सच अ वे दैट यू विल अंडरस्टैंड इट फुल्ली। नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। इट मीन्स हम एक बिल्ड इन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। जो बिल्ड इन ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बिल्ड इन ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेटेड देन हो गई, तो एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, बिल्ड इन ऑपरेटर्स होते हैं। इनको पता होता है कि इनको अगर एक काम हमने दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a प्लस बी लिखा है इज इक्वल टू सी लिखा है, तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या करेगा, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू दोनों की वैल्यूज को ऐड करेगा एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो c के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस लिखें, डिवाइड लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, ग्रेटर देन, लेस देन लिखें, तो सबका यहाँ पर एक ही काम होने वाला है क्योंकि इनको ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि आपको यही काम करना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं c1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 लिख दूँ। नाउ हेयर c1, a1 एंड b1, थ्री ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट द नॉर्मल ऑपरेंट्स ओवर हियर और द नॉर्मल वैल्यूज, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। अब अगर इसको हम प्लस करवाने की कोशिश करें तो क्या ये प्लस हो जाएगा, नहीं, ये हमको दे देगा एरर। ये क्या बोलेगा कि मैं सिर्फ ऑपरेंड्स को ही प्लस करता हूँ, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लस नहीं करूंगा। बट क्या हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसकी वजह से प्लस ऑपरेटर जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने का काम करे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम बेसिकली करके आ रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ न्यू डेफिनेशन टू द बिल्ड इन ऑपरेटर्स। मैं आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। सो वी कैन असाइन a new definition to an existing operators। ये जितने भी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं ये सारे एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर कोई भी न्यू ऑपरेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या आता है कि हमने यहाँ पर जो ये नॉर्मल वेरिएबल्स थे इनको तो ऐड कर दिया, लेकिन इनको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये है हमारे बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो हमने a1, b1, c1 बनाई, ये क्या है, ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। लेकिन प्लस ऑपरेटर को किस बात की डेफिनेशन प्रोवाइड हो चुकी है पहले से कि आपको सिर्फ बिल्ड इन वेरिएबल्स, बिल्ड इन डेटा टाइप्स को ही ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर तो ये यूजर डिफाइंड आ गया, तो यूजर डिफाइंड आते ही ये डिक्लाइन कर देता है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन हम तब भी इससे काम करवाएंगे। ये करना नहीं चाहता लेकिन तब भी हम इससे काम करवाएंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर अ न्यू डेफिनेशन इज गिवन टू द ऑपरेटर। मैंने आपको 2 टाइप्स की डेफिनेशंस लिखवा दी हैं, आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशंस अपने एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू मेक अ डेफिनेशन ऑफ योर ओन बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। सो दैट it can be used to add the objects. Now here one more question arises, क्या हम सारे जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं सबको हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं?
तो इसका आंसर है नहीं। नाउ देयर आर सम ऑपरेटर्स दैट कांट बी ओवरलोडेड। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमको परमिशन अलाउ नहीं करते कि आप हमको ओवरलोड करो। फर्स्ट आता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने बहुत बार यूज कर रखा है, कुछ इस तरीके का होता है, तो इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास आता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉट ऑपरेटर या फिर अगर हम एस्टेरिस्क की बात कर रहे हैं तो इनको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। थर्डली हम बात करते हैं अपने साइज ऑफ ऑपरेटर की। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर को अपन कब यूज करते हैं, जब भी हमको किसी भी डेटा टाइप का साइज पता करना होता है। एंड फोर्थली कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने टोकन्स के अंदर बात करी थी काफ़ी अच्छे से। कंडीशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं हमारे पास कॉलन और एक क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ही कंडीशंस को चेक करने के काम में आते हैं, तो इनको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जितने भी और ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मॉड, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, असाइनमेंट, इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले दो नंबर को यूजर से एंटर करवाएंगे एंड देन उन्हें ऐड करेंगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स। इसको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखकर दिखाया, ये स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। तो एक न्यू पेज बना लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, न्यू स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं अपन, ऑपरेटर के नाम से नहीं, ऑपरेटर के नाम से नहीं बना पाएंगे, ए नाम की क्लास बना लेते हैं। एंड प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, इंट ए, ठीक है। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, void get data। void get data फंक्शन क्या काम करेगा, ये हमको ए की जो भी वैल्यू है वो हमको ये लाकर देगा। यूजर से इनपुट करवाएंगे, मीन्स सी आउट एंटर और नंबर एंड यहाँ पर सी इन ए, ठीक है। तो ये करवा लेंगे। अब अगर सेम फंक्शन को ही हम 2 टाइम्स कॉल करवा लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो वी डोंट हैव टू मेक अनदर फंक्शन फॉर द सेम पर्पज। नाउ अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई, लेकिन अब उनका एडिशन करके हमको प्रिंट भी तो करवाना है। तो एडिशन करने का काम तो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करेंगे, लेकिन प्रिंट तो अपन करवा सकते हैं वॉइड डिस्प्ले करके। यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सी आउट वैल्यू इस, यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब मेन स्टेप यहाँ से शुरू होता है, क्लास के अंदर से। यस, क्लास के अंदर ही हम यहाँ पर मेन स्टेप करने वाले हैं। ना उसके लिए हमको यहाँ पर एक साइड में पेज लगाकर इसको समझना पड़ेगा कि हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर। तो हमारे जो इक्वेशन है दैट इज C1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन है। नाउ हम यहाँ पर करना क्या वाले हैं, A1 के रेफरेंस से अपन प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर B1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास होने वाला है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर A1 के रेफरेंस से प्लस फंक्शन है, यहाँ पर प्लस फंक्शन बनाएंगे। अभी हम प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर B1 को एज एन आर्ग्यूमेंट अपन इसके अंदर पास करेंगे एंड इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हम इसमें से रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न को अपन C1 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे एंड फिर हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब इसको ही यूज कर अगर हमें एक फंक्शन लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, C1 चाहिए। C1 किस रिटर्न टाइप में होना चाहिए, क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट है C1, तो ये मुझे क्लास टाइप में ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे विच विल एक्ट एज अ रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर।
ऑपरेटर इधर एक कीवर्ड है, यू कैन सी यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है, इसका मतलब ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, एक कीवर्ड है। एंड आफ्टर दैट वी प्लेस द ऑपरेटर दैट वी आर गोइंग टू ओवरलोड, यहाँ पर हम प्लस को ओवरलोड करने वाले हैं, यहाँ पर हम किसको ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। एंड देन हमने क्या लिखा, हमने लिख रखा है कि A1 के रेफरेंस से हमने प्लस को कॉल करा, ठीक है, एंड B1 को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करा। अब B1 को भी A टाइप ही हमको देना पड़ेगा, A एंड B1, तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। फंक्शन तो बना दिया, अब फंक्शन के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हमने यहाँ पर बोला कि हमको भाई चाहिए C1, लेकिन अब C1 तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को C1 की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवानी है तो उसके लिए मुझे एक A टाइप का C1 बनाना पड़ेगा यहाँ पर अलग से, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यस, हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, A1, B1 एंड C1। इन तीनों के ही पास इनके खुद के वेरिएबल्स होंगे कुछ, इसके पास भी एक A वेरिएबल है, इसके पास भी एक A वेरिएबल है, इसके पास भी एक A वेरिएबल है। हम अपने क्वेश्चन में क्या करवाना चाहते हैं कि A1 का जो A है, B1 का जो A है, उन दोनों को ऐड कर दो और उनको C1 के A के अंदर प्लेस कर दो, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो C1 डॉट A मतलब C1 के अंदर जो A है उसके अंदर हमको क्या काम करवाना है, A प्लस B1 का A, B1 डॉट A। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमने यहाँ पर A1 डॉट A क्यों नहीं लिखा, A1 डॉट A इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर A1 के रेफरेंस से इसको कॉल करवा रहे हैं, A1 के रेफरेंस से अपन प्लस को कॉल करवा रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन है ये A1 की वजह से कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये जो हमने सिर्फ सिंपल A लिख रखा है दैट इज द A1 A, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अलग से A1 डॉट A लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका ये फंक्शन है उसी का ये A है, दैट इज A1 डॉट A है ये। इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा, किसको, C1 को रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है C1, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ डिफरेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ लोकल वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे अगर इसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर रिटर्न करवाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर हमारा ये फंक्शन खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं इंट मेन सेक्शन के अंदर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कोड तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना है, अच्छे से उसको दोबारा से फोकसली समझना है एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। देन बात करते हैं इंट मेन सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ए टाइप के 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं इधर, A1, B1 एंड C1, ठीक है। अपन ने यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अपन A1 डॉट गेट डेटा करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमको वैल्यूज को इनपुट करवाना पड़ेगा, गेट डेटा को कॉल करवा लिया। अब इससे तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक वैल्यू का मैं क्या करूँगी, मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, तो B1 डॉट गेट डेटा कर लेंगे, B1 डॉट गेट डेटा। अब जैसे ही इन दोनों की वैल्यूज आई वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है कि A1 के रेफरेंस से प्लस, दैट मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन है ये कॉल होगा जिसके अंदर B1 एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ऑफ क्लास टाइप ऑफ डेटा टाइप A यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। अब हमने एडिशन करवा दिया, हमने वैल्यूज भी ले ली, लेकिन अब हमको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपन तीनों की वैल्यूज को एक एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। A1 डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं एंड देन B1 डॉट डिस्प्ले एंड सिमिलरली C1 डॉट डिस्प्ले, क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल करा, जब हमने यहाँ पर रिटर्न C1 करा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो C1 की वैल्यू है वो आकर यहाँ पर स्टोर हो गई, क्योंकि जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं हम वापस वहीं पर आते हैं। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल लगाया, फंक्शन कॉल हो गया, इसकी जो वैल्यूज है वो इसमें आई, अब लेफ्ट टू राइट जाती है तो ये वैल्यूज हमारी C1 के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। लास्ट में कर देते हैं रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट, यस। So the first number that we have entered is 3, second number is 5 and यहाँ पर हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई है कि A की वैल्यू क्या एंटर करी हमने 3,
b की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू c1 जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके वैल्यू डाली एंड दैट इज 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर ऐड करा जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग a different definition, a new definition to the pre-existing operators, that is the built-in operators. ठीक है, so yeah, that's all for today. We have completed the compile time polymorphism today, and in the next class we'll be completing runtime polymorphism, followed by function overriding and the definition between and the difference between function overriding and function overloading. बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। वर्चुअल फंक्शन, इट इज़ अ टॉपिक जिसको आप बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहे 1 मार्क्स के अंदर आता है या फिर अगर ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी ये आ सकता है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. You will get the notes of C++ and C programming on the Telegram channel. The link is given in the description box. You can join the channel from there. Thank you so much and I'll meet you in the next video.